Hello my dear students, welcome to Dramatic Science. This is the second lecture of the topic refraction. I hope you have learned all the topic in lecture 1, right? So let's start today's session. First of all, we will see what will be our main topics of discussion today. So guys, this 4 will be our today's topic. Graph of lateral displacement. I hope you have learned the calculation of lateral displacement that was in lecture 1. I will give the link of lecture 1 in the description, right? Kindly check it. Next, real depth and apparent depth, critical angle, and some numericals related to this topic. So let's start with our today's session, first session, that is graph of lateral displacement. So here we have a simple graph of lateral displacement, and this terminology is for my dear Bengal medium student, right? So we consider lateral displacement that was q dash as x and angle of incidence, मतलब वो जो parallel glass slab था उसमें जो angle से light incident होगा, that's I1 is simply I. So if we plot the graph, we will get this kind of nature. And one thing is evident that if I is increased, मतलब इस तरफ तो I increase होगा, जैसे जैसे I increase होगा x that is lateral displacement will also increase. ध्यान से देखो, I increasing and x increasing, and at a certain limit that is I equals to pi by 2, मतलब जब angle of incidence 90 डिग्री होगा then we will get x equals to t. ये connecting point को समझो, जब I equals to 90 डिग्री we get lateral displacement equals to d. t क्या था? t was the width of the slab, right? So if light incident at 90 degree, then simply lateral displacement equals to width of the parallel glass slab, right? So that's all for the graph. Simply we will move to our next topic, that is real depth and apparent depth. So now we have the definition of real depth and apparent depth. Real depth is the actual distance of an object beneath the surface of a medium viewed perpendicularly from another medium. Its symbol is small u. Apparent depth is the virtual distance of a medium. See the difference? Actual distance, virtual distance of an object beneath the surface of a medium viewed perpendicularly from another adjacent medium, and its symbol is v. From definition, it's not so clear maybe. Now we will draw a diagram and see how real depth and apparent depth are measured or how they are defined, right? So kindly note these definitions in your CW copy. So here we have our first proof regarding real depth and apparent depth. So real depth का मतलब क्या था? That will be actual distance beneath the surface perpendicularly, and apparent depth क्या था? Virtual distance perpendicularly beneath the surface. So here we have considered our first case where object is in denser medium, मतलब object denser medium में है. Suppose this one is a vessel and here it is some amount of water or oil, कुछ भी. This one, this P is our object, and P से जो light निकलेगा, दो light निकलेगा, that's why a line will pass perpendicularly in the upward direction, ये वाला, and second line will go obliquely like this. And if we extend the oblique ray, oblique refracted ray, ये जो oblique ray है अगर इसको extend करेंगे, this will meet at that point. This point is P dash. So P is the actual object and P dash is the virtual, that is the image of the object, right? So AP, that is perpendicular distance from the surface. AP is real depth AP, that is small u. AP dash, this small distance, I hope you can see it, this distance, AP dash is simply V, that is apparent distance, right? Acha, this one is the normal. N dash is simply the normal. So here we will have angle of incidence and angle of refraction. So P is the object, तो इससे तो light जाएगा. That's why PON, that is I, is the angle of incidence. N dash O, and you can say this as S. N dash O is as angle of refraction, right?
अच्छा, फ्रॉम जियोमेट्री एंगल एपीओ मतलब एपीओ, दिस एंगल, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज आई। क्यों? देखो इधर एक जेड फॉर्म हुआ, जेड अकॉर्डिंग टू मैथ दिस एंगल रिमेन सेम, राइट? सो दिस एंगल इज आई। सेकेंड एंगल ए पी डैश ओ इक्वल्स टू आर, मतलब ये वाला एंगल ए पी डैश ओ, ये वाला एंगल। क्यों? ये आर है, दिस कंसेप्ट, ये एंगल तो सेम होता है अकॉर्डिंग टू मैथ्स, राइट? सो दैट्स वाई दिस एंगल एंड दिस एंगल आर सेम, दैट्स वाई आर। ओके, अच्छा, फ्रॉम स्नेल्स लॉ का कंसेप्ट लेक्चर 1 में क्या बोला था? जो मीडियम लेंगे उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू एंगल। तो सिंपली देखो μ2 इंटू साइन आई, μ1 इंटू साइन आर, μ2 साइन आई, μ1 साइन आर। अच्छा, साइन आर आई मतलब ये लिख सकते हैं एंगल एपीओ, साइन आर मतलब दिस एंगल। अच्छा, साइन एपीओ इस एंगल का साइन, तो साइन मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल परपेंडिकुलर इज एओ परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज कौन है? ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसके ऑपोजिट में सिंपली पीओ है, दिस लेंथ पीओ इज द हाइपोटेन्यूज, एओ इज परपेंडिकुलर, तो एओ बाई पीओ, राइट? फिर देखो क्या है, एंगल ए पी डैश ओ मतलब ए पी डैश ओ, इस एंगल के हिसाब से एओ इज सिंपली परपेंडिकुलर नॉर्मल, और सिमिलरली दिस साइड पी डैश ओ, क्योंकि वो 90 के ऑपोजिट में है, पी डैश ओ इज आवर hypotenuse, so AO by P dash O, AO get cancelled out, so mu2 by PO, mu1 by P dash O, mu2 by PO, mu1 by P dash O, right? Now here we consider an interesting thing, that is A and O point, this A point and O point are close to each other, right? ये जो A point और O point very close है, that's why we can say PA जो distance है वो PO के साथ ऑलमोस्ट इक्वल हो सकता है। A और O पॉइंट क्लोज होगा तो ये जो PA डिस्टेंस विल बी इक्वल टू PO डिस्टेंस, देखो, एंड सिमिलरली P डैश O विल बी इक्वल टू P डैश A, राइट? ये ऑलमोस्ट इक्वल होगा, दैट्स द कंसेप्ट। सो क्या किया, PO PA पुट कर दिया, P डैश O P डैश A पुट कर दिया, सिंपली PA का मतलब PA और AP तो सेम ही है, दैट इज U, P डैश A मतलब सिंपली V, तो mu2 by U equals to mu1 by V, this one is really an important one, so mu1 को इस तरफ लाए, U को उस तरफ भेज दिए, ये हो गया। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने लेक्चर 1 में बोला था। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू mu1 मतलब रेयरर मीडियम, जैसे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, उसका फॉर्मूला क्या है, U by V, दैट इज रियल डेप्थ बाय अपैरेंट डेप्थ। ओके, गॉट इट? इसका और एक कैलकुलेशन केस 1 में और एक कैलकुलेशन बाकी है, दैट इज अपैरेंट शिफ्ट, ये पहले अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट वी हैव दिस प्रूफ, सो वी गॉट दिस इक्वेशन, राइट? अब अपैरेंट शिफ्ट क्या है? अपैरेंट शिफ्ट इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ का जो डिफरेंस है दैट इज अपैरेंट शिफ्ट। सो AP ये तो रियल डेप्थ था, और AP डैश ये क्या था, अपैरेंट डेप्थ, तो अपैरेंट शिफ्ट क्या होगा, AP माइनस AP डैश, AP माइनस AP डैश मतलब PP डैश, देखो PP डैश आएगा, तो AP इज U, AP डैश इज V, U है, और हमने V को रिप्लेस किया। V को कैसे रिप्लेस किया, इधर से देखो, V इक्वल्स टू, V को इस तरफ भेज देंगे और ये जो टर्म है नीचे लाएंगे, तो क्या होगा, V इक्वल्स टू U बाई दिस टर्म mu12, सो V की जगह रिप्लेस कर दिया, U कॉमन ले लिया, सो दिस वन इज एन इंपॉर्टेंट प्रूफ, राइट? अच्छा, इफ mu1 इज रेयरर मीडियम से AR का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, एंड mu2 इज एनी रैंडम मीडियम से mu, देन वी गेट दिस फॉर्मूला, x इक्वल्स टू U इंटू 1 माइनस ये क्या था, 1 बाई mu2 बाई mu1, mu2 बाई mu1 मतलब mu2 बाई mu1, तो mu2 का मतलब mu है और mu1 का मतलब 1 है, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, mu बाई 1 की जगह mu पुट कर दिया, राइट? सो दिस वन इज ऑल अबाउट केस 1। अब क्या होगा, केस 2 करेंगे, वेयर ऑब्जेक्ट विल बी इन रेयरर मीडियम,
So now we have our case 2 where object is in rarer medium. That means this one is the position of object P and the observer is in denser medium. This one is the observer. Denser mu2, rarer mu1. So P से एक रे सीधा परपेंडिकुलरली नीचे जाएगा, this one, and obliquely एक रे इंसिडेंट होगा, that is PO, and it will bend towards the normal. Why? Because the ray is traveling from rarer to denser medium. That's why the ray will bend towards the normal. n dash is the normal. आया समझ में? ये जो लाइट रे है ये रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा है. दैट्स वाई ये जो रे है OQ वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड करेगा. सो दिस वन इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस वन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. राइट. अच्छा, इसको हमने बेंड किया, बेंड मतलब एक्सटेंड किया, पीछे एक्सटेंड किया, एंड दिस विल कनेक्ट एट P डैश. इसको एक्सटेंड किया, हाँ, QO को पीछे एक्सटेंड किया. सो P डैश विल बी द पोजिशन ऑफ इमेज. So here real height मतलब A to P, this one is simply U. Apparent height, that is A P dash is simply V. So from geometry, see here is a twist, ध्यान से देखो, APO मतलब this angle is I. How? इधर एक Z फॉर्म हुआ, NOPA, Z, देखो, this, so this angle is I, right? अच्छा, और एक चीज AP डैश O, इसमें ट्विस्ट है, AP डैश O, ये एंगल R हुआ. कैसे हुआ? ध्यान से, दिस एंगल इज R, ये R है, तो सोच के देखो ये एंगल भी R होगा. कैसे? ये जो रे आया दिस वन और n डैश दिस वन, इसको हमने R पकड़ा तो डेफिनेटली दिस वन विल बी R. आया समझ में? हमने तो QO को एक्सटेंड किया था पीछे, दैट्स वाई दिस रे POQ n डैश ये वर्टिकली ऑपोजिट है, और इधर R होगा तो इधर देखो एक Z फॉर्म हो गया, लाइक दिस एंगल Z फॉर्म हुआ इसकी तरह. सो R. आया समझ में? खुद ही सोच कर देखो, हो जाएगा. सो A P dash O equals to R. A P dash O equals to R. From Snell's law, mu2 sin R, mu1 sin I, ये वाला एंगल. तो sin R मतलब A P dash O, I मतलब APO. अच्छा, sin A P dash O, ये वाला ट्रायंगल. साइन लेंगे तो क्या होगा? सिंपली परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज. सो ये जो एंगल है इसके ऑपोजिट में कौन सा आर्म है? AO इज द परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज कौन है? ये तो 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूज विल बी सिंपली P डैश O, ये लंबा सा जो आर्म है देखो, OA बाई P डैश O. उधर साइन APO सिंपली OA बाई PO, OA कैंसिल हो गया, तो mu2 बाई P डैश O, mu1 बाई PO. नेक्स्ट लाइन इज एब्सोल्युटली सेम, सिंस O and A क्लोजर है, दैट्स वाई PO और PA सेम होगा, P डैश O P डैश A वो भी सेम होगा. तो सिंपली रिप्लेस कर दिया, PO की जगह PA एंड P डैश O की जगह P डैश A. राइट. अच्छा, P डैश A मतलब V, PA मतलब U, तो ये आया टर्म. देखो जो केस 1 में आया था सिंपली उल्टा हो गया, U बाई V था, इधर क्या आया? V बाई U. राइट. दिस वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम. पूरा ही सेम है, सिंपली U बाई V था वो V बाई U हो गया. राइट. तो ये अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, और मुझे आप लोगों को एक काम करना है, इसका जो अपरेंट शिफ्ट होगा दैट मीन्स P डैश, ये मुझे आप लोग मैसेज करो एज अ होमवर्क. आई लाइक टू गिव होमवर्क. राइट. सो मुझे अपरेंट शिफ्ट दैट इज P डैश क्या होगा, मुझे एक कैलकुलेशन के साथ मैसेज करो. आई विल गिव माई डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन. सो दैट्स ऑल फॉर रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ. नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स अवर थर्ड टॉपिक दैट इज क्रिटिकल एंगल. ये खत्म. Now we will have concept about critical angle. So देखो, I have drawn a medium, suppose a कांच slab or anything,
वो डेंसर मीडियम है एंड दिस आउटर मीडियम इज रेयरर मीडियम, दैट इज μ1 μ2. अ लाइट रे से PQ आई एंगल पे इंसिडेंट हुआ, n डैश इज द नॉर्मल, सो इट विल डिफ्लेक्ट और इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो क्या होगा, ये जो नॉर्मल है नॉर्मल से बेंड करेगा. एंड इफ वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब सपोज ये I2 है, अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो ये जो बेंडिंग है ये भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट. ऐसा करते करते इफ वी पुट एट अ सर्टेन एंगल वेयर द रिफ्रैक्टेड रे passes by touching the surface, ये स्ट्रेट होगा लाइक दिस. मतलब ये हम लोगों ने इतना एंगल को इंक्रीज कर दिया कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो मतलब इंक्रीज होते 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 ये जो सरफेस है सरफेस टच करके निकल गया. देन दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा सी, दैट इज क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम, राइट. तो इधर ये जो बड़ा सा आर डबल डैश बोल सकते हैं, क्या आया, सिंपली 90 डिग्री, राइट. सो क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल है कि क्रिटिकल एंगल इज अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस. इफ we incident light on that angle, then the refracted ray will pass touching the surface. That means angle of refraction will simply be 90 degree. You can find this definition in your previous class, like class 10 books also, right. So now here we can conclude some conditions ki when we are allowed to form critical angle. Light should travel from denser to rarer medium, मतलब लाइट को डेफिनेटली डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाना होगा. एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज R मस्ट बी 90 डिग्री. तभी ये जो एंगल है उसको हम क्रिटिकल एंगल, दैट इज इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल बोल सकते हैं, राइट. नाउ वी विल डिराइव द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडिसेस. So here we have a very simple proof, very simple relation between critical angle and refractive index. I have simplified the diagram. This one is the denser medium, that is μ2, rarer medium μ1. देखो I मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट इज थीटा सी क्रिटिकल एंगल, एंड R इज 90 डिग्री. सरफेस टच होकर निकल गया. तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, μ2 इंटू साइन थीटा सी, μ1 इंटू साइन R. साइन R मतलब सिंपली 90 डिग्री होगा. 90 डिग्री साइन 90 का मतलब है 1. सो साइन थीटा सी इक्वल टू μ2 इस तरफ चला जाएगा, दैट इज μ1 बाई μ2 इंटू 1 दिस वन. साइन को इस तरफ इन्वर्स कर दिया, थीटा सी इक्वल टू दिस वन. And if we consider rarer medium as AR, then μ1 will be 1 and μ2 को एक random mu पकड़ लिया. So theta c equal to sin inverse 1 by mu. This relation is between critical angle and refractive index. Simple था, तो ये कर लो अपने कॉपी में. Next we will have some interesting numericals regarding refraction. So here is a simple example of refraction. Numerical number 1, a rectangular glass block of thickness 10 cm and refractive index 1.5 is on a coin. That is, suppose this one is a coin and इसके ऊपर एक slab है, right? Find apparent position of the coin if viewed perpendicularly. So a rough diagram. This one is the slab, P is the coin. तो simply तो ऐसे ही light जाएगा. This one is the thickness, P dash is the apparent position, right? अच्छा, तो म्यू 1.5 है. म्यू मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर तो AR है, दैट्स व्हाई म्यू इक्वल्स टू 1, और इसका थिकनेस T इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ये था फॉर्मूला. ये किसका फॉर्मूला था, जब लाइट डेंसर टू रेयरर जाएगा, राइट. तो μ1 तो 1 है सिंपली, इस मीडियम का μ1 1 और V है. μ2 मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 और U इज द एक्चुअल डेप्थ, दैट इज AP, दैट इज 10 सेंटीमीटर. तो सिंपली V देखो ये आ गया. दिस वन इज द एपरेंट डेप्थ, दैट इज AP डैश का वैल्यू. तो एक्चुअली हम लोगों को क्या लगेगा कि 10 सेंटीमीटर माइनस दिस, दैट मीन्स 3.3 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कॉइन ऊपर आ गया है, राइट. ये डिस्टेंस कॉइन अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांजिशन होगा. So that one is the very simple sum. Next we will move to our second sum.
So now we have our numerical number 2. This sum is interesting but little bit complicated. We are considering two medium, mu A, mu B, and outer is AR. P is the object, तो एक लाइट सिंपली स्ट्रेट जाएगा. D इसका विड्थ है mu A का, और D mu B का भी विड्थ है, राइट. तो P से एक रे गया, फिर उसका रिफ्रैक्शन हुआ, उसको एक्सटेंड करेंगे तो पहले P डैश आएगा, राइट. फिर ये रे जाएगा like this, उसको एक्सटेंड करेंगे in the backward direction, we will get P double dash, and this point is A. So we need the final apparent position or apparent depth of P. ये जो P है इसका final apparent position और apparent depth निकालना है, and we have basically two medium in the system and outer medium is AR, मतलब तीन medium है. Fine. Okay. So from diagram at the first interface, that means this one is first interface and this one is second interface. आया समझ में? ये mu A और mu B मीडियम है, इन दोनों का इंटरफेस this one mu that is 1, और ये mu B और AR है, ये सेकेंड इंटरफेस है, राइट. तो from diagram at the first interface between mu A and mu B, we know बेसिकली हम लोगों को क्या आएगा, mu 2 by u, ये फॉर्मूला है, mu 2 by u equals to mu 1 by v, that is केस 1 का फॉर्मूला. तो mu 2 मतलब दिस मीडियम, नीचे वाला मीडियम mu A, एंड u मतलब रियल डेप्थ दैट इज d. फिर mu 1 मतलब सेकेंड मीडियम, ये वाला mu b, और v मतलब apparent position, sorry apparent depth, that means bp. सिर्फ इस मीडियम के हिसाब से सोचो, नीचे वाला जो मीडियम है bp, bp डैश, bp रियल डेप्थ और bp डैश apparent, that's why d bp डैश this one. तो bp डैश क्या आया, mu b by mu a into d, मतलब इस तरह भेज दिया, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया. तो फॉर दिस मीडियम दिस कैलकुलेशन इज नो, ठीक है, इट्स फाइन, इट्स अंडरस्टैंडेबल. बट at the case of mu B and AR interface, there is a twist. For this two media or this interface, P is not the object. For this first interface, P is the object, P dash is the image. That's fine. But at the case of second surface, second interface, P is not the object. So which one is the object? P dash will act as an object. आया समझ में? ये जो सेकेंड इंटरफेस है इसके हिसाब से P डैश ऑब्जेक्ट होगा और उसका इमेज होगा P डबल डैश. सो P डैश का जो पोजीशन है दैट इज AP डैश, दैट वन विल बी रियल डेप्थ एंड AP डबल डैश विल बी apparent डेप्थ, राइट. अच्छा, नाउ एट द सेकेंड इंटरफेस बिटवीन mu B एंड साइट आसपास का क्या है, सिंपली AR. सो mu B बाई AP डैश, mu B बाई फॉर्मूला क्या है, दिस बाई u, सो mu B बाई AP डैश, ये पूरा रियल डेप्थ है, इक्वल्स टू 1 बाई AP डबल डैश, 1 क्योंकि AR का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, सो 1 बाई AP डबल डैश, ये वाला लेंथ AP डबल डैश. सो AP डबल डैश को उस तरफ भेजा, AP को इधर लाए, mu B को इधर लाए, दिस वन. अच्छा, AP डबल डैश है, AP डैश को क्या लिख सकते हैं, AP डैश को AB BP डैश, राइट. अच्छा, AB का वैल्यू क्या है देखो, AB मतलब सिंपली D, सो AB मतलब D और BP डैश मतलब दिस टर्मिनोलॉजी हेयर. तो सिंपली mu b को मल्टीप्लाई कर दिया, d बाई mu b कट जाएगा d बाई mu a, d को कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई mu b प्लस 1 बाई mu a. सो दिस एक्सप्रेशन इज द फाइनल apparent depth of the object P, that is A. P डबल डैश इज द फाइनल apparent depth, राइट. तो अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को रिवाइंड करो, ठंडे दिमाग से सोचो एंड इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो. So guys, that's all from today's session, and I hope you have learned this 4 topics. There will be lecture 3 where I will discuss total internal reflections, vision of phase, optical fiber, that is a really interesting one, and extra numericals related to refraction. Okay,
सो बस ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड कोई डाउट हो यू कैन नो कमेंट और यू कैन नो इंस्टाग्राम में, आई विल गिव द डिटेल्स। तो बस आज के लिए चलते हैं, मिलेंगे जल्दी, तब तक नमस्कार, टाटा, बाय बाय।